Apart from that, I'm also working for waste management activities right from residential complexes, for municipal corporations, waste collection drives, composting units in schools, colleges, and universities. I'm also a member of Technical Review Committee for Hazardous and Other Waste Management Rules, MOEFCC. And I'm working for even the watershed management activities in rural areas of Purandar Tehsil, in nearby Pune regions, peri-urban regions also. And there are many, many more things, but I think this is more than enough. I think we have about 24 participants. And if we have like couple of more who join in late, we can repeat a little bit of the information. Yeah. But you can get in to the session. And my first question is, people have asked this many times. If we have wet waste, गीला कचरा जो होता है उसी में हम फ्लावर्स क्यों नहीं डाल सकते, फ्लावर को हम अलग से क्यों कंपोस्ट करें या उसको अलग से सेग्रीगेट क्यों करें? सो व्हाट डू यू से टू दैट? एक्चुअली मैं तो घर में अपने किचन का जो भी है गीला कचरा है, वेट वेस्ट है, उसके साथ ही फ्लावर्स को डालती हूँ। रादर मैं मेरे कंपोस्टिंग यूनिट को फ्लावर से डेकोरेट करती हूँ, सो दैट वो मैं घर में भी रख सकती हूँ, लाइक इन माय लिविंग रूम ऑल्सो। सो ये मेरा कंसेप्ट है कि लाइक कचरा तो हमारा है, ये फर्स्ट कंसेप्ट आना चाहिए, वो हमारे घर का हिस्सा है, और हमेशा हम उसको कहीं तो कोने में रखते हैं या समवेयर आउटसाइड, मे बी इन द बालकनी और टेरेस, उसको छुपा के रखते हैं। दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग गुड, मेकिंग समथिंग or considering it as a resource, we should actually consider it as a part of our home. And that's why but many people, they think that it should be like nirmalya or holy flowers is a nirmalya. It is not considered as actually as a waste. That's why some people are reluctant to use it for like, especially if we have a non-veg food. So it's okay, we can keep a separate container or a composting unit for holy flowers, and that also works well. I have done a lot on this, so in the due presentation also we can see that. गुड। सो वो क्वेश्चन आंसर हो गया। एंड लास्ट 2-3 बार या आई थिंक बहुत बार मुझे ऐसा फीडबैक आया था ऑन द इंस्टा लाइव कि हिंदी में बात करिए, हिंदी में बात करिए मैम, हिंदी में बात करिए, हमको समझ नहीं आता। सो मैंने इसलिए सोचा था कि ये जो फ्लोरल वेस्ट और ये जो है, अगर हम इसको सबको समझाना चाहते हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे, और ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी बात करेंगे, बिकॉज वी हैव लाइक हम एक तरीके से बायलिंगुअल बहुत कंफर्टेबली हम चले बोल सकते हैं। सो हम उसे हिंदी इंग्लिश में करेंगे। आई होप ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और क्योंकि हम इसे जो हम विलेजेस सातारा और जो दूर दराज के विलेजेस में भी ले जाना चाहते हैं सेम प्रोसेस को, तो वहां पर अगर हम मराठी में बात नहीं करें तो हिंदी तो एटलीस्ट सब समझ सकते हैं। सो इसलिए अगर कोई भी पार्टिसिपेंट है हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो आप टाइप करके चैट में क्वेश्चन बोल सकते हैं, वील एक्सप्लेन इट अगेन। ग्रेट। सो अनुष्का, वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनिंग अस कि पहले हम कंपोस्टिंग की बात करेंगे और फिर हम एंजाइम्स की बात करेंगे? Actually, everything is included in my presentation. I'll take a break between composting and bioenzymes. So I'll explain the process in between. मैं उसको explain करूंगी, मेरे slides English में है, but explanation मैं हिंदी में दे दूंगी, so that it will be easy for everyone. So can I share my presentation? Yeah. I think you can share your screen now. Yeah. Okay. Let me check if I share my screen. Yeah, no. You have to make me co-host then. Okay, that's okay. All the best to you, ma'am. All the best to you. Thank you. Okay. I'm seeing myself in you. I have been like you in my younger days.
They're doing all rainwater harvesting, wastewater recycling, bio-waste composting, greening, Great. all sorts of things, पवित्र फूल फल को भी करते हैं. Yes. Wow. This is a nice, very attractive image. I hope it's visible for everyone. I can see it. Yeah. Are you all able to see it? Yeah, very, very clear, very clear. Yeah. सो अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है. गणपति फेस्टिवल अभी 1-2 दिन में शुरू होगा. सैटरडे से शुरू हो रहा है. एंड ये फ्लावर्स हमें कितने अच्छे लगते हैं ना, जब हम उसको लेके आते हैं, या हमारे घर से भी हम लोग अपने गार्डन से उसको लेके आते हैं टू ऑफर. हमें भगवान के लिए अर्पण करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, उसके मालाएं बनाते हैं. और एक दिन के बाद हम उसको मतलब सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये तो वेस्ट हो गया. अभी इसको हम लोग अलग से बट निर्माल्य कलश में रखेंगे, और फिर बाद में उसको मे बी नदी में छोड़ेंगे या वाटर बॉडीज में उसको ऑफर करते हैं. सो दैट इज ऑफरिंग इन द वाटर बॉडीज इज ऑलवेज नॉट बैड, बट इफ वी आर, हम लोग अगर उसको प्लास्टिक में बंद करके फेंक रहे हैं तो भी एक बहुत ही उसका निगेटिव इम्पैक्ट है. दूसरी बात यह है कि हर बार जरूरी नहीं है हमारे वाटर बॉडीज में ही उसको मतलब ऑफर करना, अपने यूज के बाद उसको वाटर बॉडीज में छोड़ना, क्योंकि फेस्टिवल टाइम्स में इतना वेस्ट कलेक्ट होता है. फ्लोरल जो ये है तो वो इतना जनरेट होता है कि हम उसका घर में ही अगर अच्छा यूज करें तो मुझे लगता है भगवान भी ज्यादा खुश हो जाएंगे हमसे. So these are most of the common flowers what we use in our festivals. हम लोग जो भी नॉर्मल अगर मार्केट में भी जा रहे हैं तो लाइक अभी भी मुझे ऐसे मतलब फील हो रहा है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं जाके खुद लेके आ रही हूँ इस फ्लावर्स को, बिकॉज दे आर सच एकदम फ्रेश फ्लावर्स हमें अभी मिलते हैं मार्केट में भी और हमारे घर में भी जो होते हैं. एंड दीज आर मोस्ट कॉमन फ्लावर्स व्हाट वी यूज ड्यूरिंग आवर फेस्टिवल्स. तो अभी उसका हम करें क्या? जैसे यूज करने के बाद, भगवान को चढ़ाने के बाद, हम दूसरे दिन जब वो मालाएं निकालते हैं, ये इतनी सुंदर मालाएं हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, भगवान को एक दिन चढ़ाते हैं, और उसके बाद निकालने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि इसके साथ करना क्या है. तो हम पूरा का पूरा उसको निर्माल्य कलश में रखते हैं. हालांकि अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज आर वर्किंग सो वेल. उन्होंने सब जगह पे निर्माल्य के लिए कलेक्शन के लिए सेपरेट कंटेनर्स रखे हुए होते हैं. वहां पे अगर हम लोग वो लेके जाएं और वहां पे डाल दे तो भी एक बहुत अच्छा है. बट मेक श्योर कि हम लोग उसको प्लास्टिक में कभी कलेक्ट करके उस कलश में ना डालें, क्योंकि हर एक बार हर एक घर से जो आने वाला ये फ्लोरल का जो ये है, ये फ्लावर्स है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू एक्चुअली रिमूव दैट प्लास्टिक कैरी बैग्स में से ये सारा फ्लोरल फ्लावर्स को निकालना. सो मेक श्योर कि आप उस फ्लावर्स को आप एक में भी ब्राउन पेपर बैग में या इवन ऐसे ही डाल के आएंगे तो भी चलेगा. सो इसके साथ ये इतने अच्छे फ्लावर्स है तो इसका कुछ अच्छा भी बना सकते हैं अपने घर में. सो हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है ये. सबसे पहले ये अगर हम लोग वो निर्माल्य कलश को भी देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है. मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है हर एक सेशन में, इवन अनुजा नोज दैट, कि ये कचरे के डिब्बे को अपने घर के या निर्माल्य कलश को भी कभी आपने प्यार से देखा है क्या? अगर आपने प्यार से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें है क्या. सभी हम लोग उसको यूज करते हैं कचरे के डिब्बे को और इवन निर्माल्य कलश को ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स. बट उसको यूज करने के बाद हम लोग बस उसको डालने के लिए यूज करते हैं, फ्लावर्स डालने के लिए. उसके बाद उसमें हम लोग चेक नहीं करते कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या है. और वो उसको प्यार से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ फ्लावर्स नहीं है, ये तो रिसोर्स है. ये कोई मतलब एज अ वेस्ट करने की चीज ही नहीं है. इसको हम कैसे इफेक्टिवली घर में भी यूज कर सकते हैं. उसका रीयूज भी हो सकता है और रिसाइकलिंग भी हो सकता है. जैसे फूलों की मालाएं हैं, उसको आप रंगोली बनाने के लिए यूज कीजिए. दूसरे दिन जब आप उसको निकालते हैं, भगवान के सामने ही हम अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हैं. नॉर्मली वी पुट कलर्स इन दैट. तो वो कलर्स भी एक्चुअली एक कचरा जो होता है उसमें चला जाता है, एंड उससे सॉलिड वेस्ट का
अमाउंट भी पड़ता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग कुछ ऐसा यूज करें जो हमारे घर में ही है। तो इस फ्लावर्स के पेटल्स से आप बहुत अच्छे से रंगोली बना सकते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक योर फेस्टिवल्स वेरी मच इको फ्रेंडली, पर्यावरण पूरक जो फेस्टिवल्स हम लोग त्योहारों की बात करते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। दैट इज अ बेस्ट रीयूज ऑफ दिस फ्लोरल वेस्ट। उसके अलावा हम इससे कंपोस्ट बना सकते हैं घर में। अभी फेस्टिवल्स के टाइम भगवान को हम नारियल भी चढ़ाते हैं, तो कोकोनट हस्क हमारे घर में काफी सारा जमा होता है। एंड ये सारी जो मैं आपको जो आज तरकीबें बता रही हूँ, इससे आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें आपके घर में ही है। तो कोकोनट हस्क है आपके पास फ्लोरल वेस्ट विच इज वेस्ट नहीं है, वो एक रॉ मटेरियल एज आई कैन से। ये रॉ मटेरियल रोज का रोज आपके पास है, और इसी के साथ हम बनाएंगे एक अच्छा सा कंपोस्टिंग बिन अपने घर में। तो कैसे बनाएंगे और इससे बनेगा क्या? सो आपको एक मिनट में दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में है, ये मेरे घर का कंपोस्ट है। इट लुक्स लाइक सॉइल, आई डोंट नो हाउ मच इट इज विजिबल। या it's I don't know. राइट हियर अनुष्का, राइट हियर, ऐसे दिखा सकते हो आप, आपके चेहरे के पास में। या अच्छा, but it's पास हाँ, में, I हाँ, hope it's visible perfect. now. Yeah, it looks like soil, पूरा soil particles जैसे पूरा बन जाता है। And say आपको it is लगेगा like कि tea. ये soil It is है। like tea पत्ती, चाय का पत्ती, चाय का पत्ती. या यस यस एब्सोल्युटली। बट चाय के पत्ती को इतनी अच्छी सुगंध नहीं आती जितनी इसको आती है। सो जैसे हमें लगता है कि मिट्टी की जो खुशबू है, वैसे ही खुशबू इसको आती है। तो यू आर एक्चुअली नथिंग बट यू आर मेकिंग अ सॉइल। तो इस तरीके से ये सॉइल हम बनाएंगे कैसे, वो आज हम देखेंगे। सो चलिए दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल, वी आर ऑल सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आजकल सॉइल इरोजन इतना हो रहा है, जी सॉइल खराब इतनी हो रही है, कि अगर हमारे पास में वो नेचर का सुपर पावर आ गया कि हम सॉइल बना सकते हैं, तो इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड क्या, हम डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड पूरा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने धरती माँ को फ्रेश, अच्छी, हेल्दी सॉइल बना के दे रहे हैं। जी इससे अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते। सो जी। लुकिंग फॉरवर्ड। सो अभी इसके लिए आपके रॉ मटेरियल क्या लगेगा? मैंने कहा कि आपके पास जो फ्लावर्स है वही आपका एक बेस्ट नेचुरल रिसोर्स आपके पास है, रॉ मटेरियल आपके पास है। बिकॉज इट्स अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। जो फ्रेश फ्लावर्स है, होली ग्रास जिसको हम दुर्वा कहते हैं, जो गणपति को हमेशा चढ़ाया जाता है, वो भी एक रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। सो ये नाइट्रोजनस मटेरियल हमें लगता है कंपोस्टिंग के लिए। And all these flowers and holy grass and all is considered as a green material, that is nitrogen rich material. And उसके साथ हमें लगता है कार्बन रिच मटेरियल which is called as a brown material. अभी उसमें है हमारे सूखे पत्ते। तो सूखे पत्ते तो पेड़ों के या प्लांट्स के हमें इजीली मिल जाते हैं। उसके अलावा हमारे हमें नट शेल्स है, कभी हम लोगों के पास, कभी अगर कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्राउन पेपर भी डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको क्या लगेगा? तो वो है आपके घर में जो बनता है रोज, मोस्टली हमारे सभी के घर में बनता है, दैट इज बटर मिल्क। ये हमारे घर में बनता है, कभी कभी ज्यादा खट्टा होता है तो और भी अच्छा है। दैट यू कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके लिए कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं मिट्टी। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मिट्टी यूज कर सकते हैं। काउडंग इज अनदर ऑप्शन। अभी तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि काउडंग से बनी हुई अगरबत्तियां आ रही हैं, धूप स्टिक्स आ रही हैं। तो काउडंग भी हम कंपोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर कंपोस्ट कल्चर जो बाजार में भी मिलता है, मार्केट में मिलता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या एक रेडीमेड, मतलब जो अभी मैंने घर में बनाया हुआ कंपोस्ट है, ऐसा किसी से आपको मिल गया तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू गेट ऑल दिस थिंग्स। ये चार में से तो आपको कोई भी ऑप्शन चलेगा। एंड दीज थिंग्स आर रेगुलरली जनरेटेड, डेली जनरेटेड, आपके घर में ही बनती है। तो इसी से हम बनाएंगे कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग यूनिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे सेट करते हैं इस कंपोस्टिंग यूनिट को? एक तो पहले आप अपने घर में ही कंपोस्टिंग स्पॉट सेट कीजिए, कहाँ पर कंपोस्टिंग करना है हमें।
मतलब मे बी इन अ टेरेस या बालकनी के कॉर्नर में। मेरे घर में तो मैंने मेरे मतलब कभी कभी तो मैं लिविंग रूम में रखती हूँ उसको, या कभी मेरे टेरेस में रखती हूँ, जहां पर भी मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अभी जैसे फेस्टिवल टाइम है, हमारे घर में भी खाना काफी बनता है, मेहमान आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, तो हम लोग खाना भी ज्यादा बनाते हैं, तो ऑब्वियसली किचन वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होता है। तो उस किचन वेस्ट को भी आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अलग से यूनिट इसका सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेग्रीगेट कीजिए, मतलब प्लास्टिक पेपर से उसको अलग रखिए, प्लास्टिक पेपर, ग्लास मेटल, और फ्लावर्स को अलग रखिए, और आपके किचन वेस्ट को अलग रखिए। फिर कंस्ट्रक्ट करना है आपको कंपोस्ट बिन। तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आज मैं बता रही हूँ कंपोस्टिंग की, वो है वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज एयर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, एटीएम। ये हमें मेंटेन करना है। अभी एटीएम हमेशा हम लोग अलग लिए, मतलब हमारे पैसों के लिए वगैरह हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, बट कंपोस्टिंग का एटीएम इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और उसी को हमें चेक करना है, मतलब एयर टेम्परेचर, मॉइस्चर। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है हमारा कंपोस्ट बिन। तो हमें पहले तो लगेंगे कोकोनट के छिलके, नारियल के छिलके जो हमारे घर में ही है, उसको आप बेस में लगा दीजिए। एक अर्दन पॉट लीजिए, या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, बट अगर आपने प्लास्टिक का लिया तो मेक श्योर दैट देयर आर सो मेनी होल्स, यू हैव टू मेक, आपको आपको इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट मैक्सिमम एयर कैन रीच इनसाइड। और जो भी कंपोस्ट बनने के प्रोसेस में जो लीचेट या वाटर लिक्विड तैयार होता है वो उसमें से बाहर आए। तो ये मेरी आपसे मतलब फॉर इनिशियल प्रोसेस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक मिट्टी का गमला इज द बेस्ट ऑप्शन। वो हमारे घर में भी रहता है, तो उसको आप यूज कीजिए। एंड नीचे सबसे नीचे जो लेयर है वो है कोकोनट हस्क की, या आप उसमें कोकोपिट भी डाल सकते हैं। अगर ये आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ ड्राई लीव्स भी उसमें डाल दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन मेक श्योर के 3 पार्ट्स ऑफ ब्राउन, मतलब 3 पार्ट आपके ब्राउन का होगा, तो 1 पार्ट ग्रीन, मतलब 3:1 रेशो में आप इसको एक के ऊपर एक भरते जाएंगे। तो आपके ब्राउन पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आप इसके ऊपर फ्लावर्स रख सकते हैं, 1 पार्ट। अभी फ्लावर्स या आपका किचन वेस्ट जो है वो डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे इधर बटर मिल्क, या फिर काउ डंग, या फिर कंपोस्ट, या फिर कंपोस्ट कल्चर। ये चीजें आप इस पे डाल सकते हैं। मेक श्योर कि हर एक बार आपके पास काफी सारा वेस्ट तैयार होता होगा, लेकिन एक ही टाइम में इसको कवर नहीं करना है, यू हैव टू मेक लेयर्स ऑफ इट। और एक के बाद एक ऐसे हर ग्रीन पार्ट के बाद आपको उस पे कल्चर या काउडंग या बटर मिल्क डालना है, एंड देन कवर इट विद द ब्राउन मटेरियल अगेन। ऐसे करके आपको पूरा कंटेनर भरना है। अभी ये आपका रेडी हो गया, सेटिंग ऑफ कंपोस्टिंग यूनिट आपने बना दिया। अभी इसको आपको क्या करना है, तो उसमें से थोड़ा सा पानी आपको इसके ऊपर छिड़कना है। अभी आपने थोड़ा सा पानी क्यों डालना है, अगर आपने काउ डंग यूज किया तो उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट काफी रहता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कंपोस्टिंग का कंटेनर है वो वेट नहीं होना चाहिए, बस मॉइस्ट होना चाहिए। मतलब उसमें पानी हार्डली 50 to 60% ही रहना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, तो आपको, आप हाथ में लेके देखिए, आपको पूरा गीला, एकदम गीला दिखेगा, तो इसका मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। जैसे फूल हम अगर अब प्लास्टिक में रखते हैं 3-4 दिन, घर घर में ही अगर बाहर रखेंगे, फ्रिज के बाहर रखेंगे, तो आपको दिखेगा कि इसमें भी पानी छूटता है। तो वैसे ही पानी ये डाइजेशन प्रोसेस में छूटेगा, डिकम्पोजिशन में छूटेगा। तो वो पानी बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए, तो उससे ज्यादा आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी की जरूरत पड़ती है समर सीजन में, नॉट इन अ विंटर सीजन या रेनी सीजन। तो इसके लिए आप करेंगे ऐसे करके, आप मॉइस्चर मेंटेन करेंगे। 4 दिन के बाद आपको उसको अपसाइड डाउन करना है। आई एम गोइंग टू शो यू द वीडियो सो दैट उसमें आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये एटीएम का जो चक्कर है वो क्या है, ये हम देखते हैं।
आइए मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। इसकी साउंड ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप इट इज विजिबल। अनुजा, अनुजा, Yes, yes, it is visible. Yes, it is visible, Anusha. या ये देखिए, ये मैंने जो बनाया हुआ है घर में ही कंपोस्ट, तो एक एक मिट्टी के दाने जैसा बन जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो ये एक मिट्टी का गमला मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक छेद है नीचे। इफ यू वांट यू कैन मेक 1 or 2 holes more, so excess water can come out from that holes. अभी उसके बाद जो रॉ मटेरियल जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें मैंने फ्लावर्स यूज नहीं किए हैं, इसमें मैंने किचन वेस्ट यूज किया है, बट यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर फ्लावर्स। सो हमारे जो कोकोनट के छिलके हैं वो मैंने डाल दिए हैं बेस में। इस गमले के यहाँ पे ऐसे डालने हैं। इसके ऊपर आएगा, अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई लीव्स, जो वो हमारा रिच सोर्स ऑफ कार्बन है। अभी एग्जैक्टली आपको 3:1 भी नहीं पॉसिबल है तो भी कोई बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके ब्राउन पार्ट थोड़ा ज्यादा रहे तो बेटर रहता है। आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। सारे सूखे पत्ते आप इसके ऊपर, ये ड्राई लीव्स आपने, सूखे पत्ते आपने इसके ऊपर डाल दिए। फिर आपके पास है ये किचन वेस्ट। ये देखिए, इसमें मैंने पूरा डाला है, चाय की पत्ती है, पत्ता गोभी के छिलके हैं, सब कुछ है इसमें, वो मैंने यूज किया है और मैंने उसके ऊपर डाल दिया। मेक श्योर कि आप चाय की पत्ती अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसको वॉश करके डालिए ताकि चींटियों का प्रॉब्लम ना हो। ये डाल दिया आपने। अभी आपका पूरा ग्रीन जो नाइट्रोजन रिच वेस्ट है वो आपने उसके ऊपर डाल दिया। अभी इसके ऊपर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये है मेरे पास बटर मिल्क। ये देखिए बटर मिल्क, उसको मैंने डाल दिया बटर मिल्क को। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो यू कैन यूज सॉइल, यू कैन यूज सॉइल। आजू बाजू में आपको आराम से मिल जाएगा। छाछ नहीं है तो कोई बात, थोड़ी ही मिट्टी डालने की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं। नाउ दिस इज कंपोस्ट कल्चर जो आपको मिल जाता है मार्केट में, उसमें भी एकदम थोड़ा सा लगता है ये। जस्ट अ पिंच ऑफ कंपोस्ट कल्चर इज मोर देन सफिशिएंट। उसके ऊपर नाउ द फाइनल लेयर इज अगेन ऑफ ड्राई लीव्स, ब्राउन। मेक श्योर दैट ऑल इज ब्राउन। फिर इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। देखिए मैंने कितना कम पानी डाला है। नाउ यू कैन डेकोरेट इट विद अ फ्लोरल वेस्ट। फ्लावर्स के पेटल्स निकाल के भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है आपका कंपोस्टिंग यूनिट। अभी आप उसको 4 दिन ऐसे ही रखेंगे और 4 दिन के बाद और कुछ नहीं करेंगे, फिर सिर्फ पानी डालना है। पानी ऐसे ही बस दिन में 1 बार उसको डालना है और कुछ नहीं है। समटाइम्स यू कैन फाइंड दैट कि गमले के बाहर वो बॉटम का जो ये है वहां से पानी आ रहा है, तो आप उस पानी डालना बंद कीजिए एंड देन यू हैव टू टर्न इट अपसाइड डाउन आफ्टर 4 days. That is how you can maintain ATM. So ऐसे आप फेस्टिवल टाइम में 7 दिन के 7 गमले भी लगा सकते हैं या एक बड़े कंटेनर में आप रोज ऐसे ही लेयर्स लगा सकते हैं। ऐसे आप डाल सकते हैं। अभी ये देखिए, जब ये टर्न करते हैं 1 महीने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंप्लीटली टर्न किया हुआ ये है और इससे बन गया है हमारा ये कंपोस्ट।
इसकी जो खुशबू है वो मिट्टी की खुशबू जैसे आती है वैसे ही खुशबू आती है। ये मेरे ही घर का है। So this is a very simplest technique to make a compost. ये पूरे हर डे एवरी डे कंपोस्ट आप इसी तरीके से आपके घर में बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे घर में मैंने कैसे ये इसकी एक ये बनाई है ओवरऑल। ATM आपको मेंटेन करना है जस्ट बाय टर्निंग इट अपसाइड डाउन। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू यूज द फ्लोरल वेस्ट एंड किचन वेस्ट। एंड ये बना के दिस इज माई स्मॉलेस्ट बालकनी गार्डन। एक्चुअली ये बालकनी है जिसमें 116 प्लांट्स मैंने लगाए हैं एंड ऑल आर ग्रोइंग ऑन होम कंपोस्ट। मेरे जो छोटा होम कंपोस्टिंग यूनिट है, तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे सी जगह में भी आप बहुत अच्छे से ये कंपोस्ट यूनिट तैयार कर सकते हैं। आपके डूज एंड डोंट्स कंपोस्टिंग के क्या है? यू हैव टू मेंटेन ATM मतलब वही आफ्टर 4 days you have to turn it upside down in summer season and in winter and rainy season just once. टेम्परेचर मॉइस्चर उसी से मेंटेन हो जाता है। देन जो गमले से जो लिक्विड बाहर आता है उसको कहते हैं कंपोस्ट टी और लीचेट। उसको आप कलेक्ट करके वापस उस कंपोस्टिंग बिन में डालेंगे तो आपका कंपोस्टिंग फास्ट हो जाता है और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है और इससे आप आपके घर में एक प्लेट टू प्लेट मॉडल तैयार कर सकते हैं। मीन्स व्हाट? तो आपका जो भी फेस्टिवल का फूड है या जो भी एवरीडे भी बाद में भी जो आपके घर का कंपोस्ट ये किचन वेस्ट है या फ्लोरल वेस्ट के लिए भी आप उसको आप कंपोस्टिंग यूनिट में डालिए। कंपोस्ट आपका रेडी हो जाएगा। फिर आप इधर उससे आप छोटे से, आपके पास अगर बड़ा गार्डन है तो आप उसमें वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं या ऐसे छोटे छोटे गमलों में भी आप वेजिटेबल्स या फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। एंड जो भी इसका जो गीला कचरा है या फ्लावर्स है, अगेन यू कैन सेंड इट बैक इनटू द कंपोस्टिंग यूनिट। इस तरीके से आप एक फ्लोरल वेस्ट मैनेजमेंट एंड किचन वेस्ट मैनेजमेंट घर में कर सकते हैं। थैंक यू अनुष्का। मेरे पास एक कमेंट था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना घर का खाना, घर का दाल चावल, वैसे घर का कंपोस्ट, होममेड कंपोस्ट। होममेड की बात ही कुछ और होती है और वैसे ही होममेड कंपोस्ट की भी बात ही कुछ और होती है। वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अनुष्का। द फर्स्ट वन इज कि आप उसे टर्न कैसे करें? हाउ डू यू टर्न इट? या टर्न करना है मतलब आपका कोई भी गार्डनिंग जो इक्विपमेंट होता है उससे आप उसको मिक्स कर सकते हैं। टर्निंग नॉर्मली अपसाइड डाउन आइडियली होता है, बट अगर आपके पास वैसे कोई नहीं है तो आप कौन सा भी एक छोटा सा गार्डनिंग इक्विपमेंट जैसे मिट्टी निकालने के लिए वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसको भी आप यूज करके टर्न कर सकते हो उसको अपसाइड डाउन। हमारे पास वो बेकिंग की ट्रेज है जो पुरानी हो गई है और उसपे वो निशान बन गए थे, तो हम उसके ऊपर पूरा निकाल के फिर उसको ऐसे पुराने चम्मच या पुराना जो रहता है ना पकाने का जो ओल्ड हो जाता है, जी जी, उससे अंदर डाल दो। और नो नीड टू कवर, जरूरत है ढकने की? एक सवाल है ढकने की मतलब उसको कवर या हाँ, मतलब क्या है कि आपने अगर उसको ब्राउन से मतलब पूरा ब्राउन लीव से उसको प्रॉपरली कवर किया तो आप उसके ऊपर अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ रोडेंट्स या ऐसा कुछ इशू है तो वायर मेश डाल के उसको कवर कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। बट कोई भी ऐसे मतलब कि उसमें हवा अंदर चल जानी चाहिए, इस तरीके से आपको कवर करना है। या एक आप छोटा सा एक आपको लगा तो मतलब स्पेशली इन रेनी सीजन अगर आपने उसको ठीक से कवर कर लिया कपड़े से भी तो भी चल जाएगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज के दैट। मेरे घर में तो आपने देखा वो यूनिट में मैंने कुछ कवर नहीं किया है। One point, madam, one point. Sometime Yes. in the composting, so nearly around when 75% is done, जब 75% हो जाता है तो कुछ वर्म्स निकल आते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्म्स निकल आते हैं।
और ये वर्म्स जी खाने के लिए, ये वर्म्स खाने के लिए चिड़िया नहीं तो ये कौवा आ जाते हैं। तो हाँ ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आप वायर नेट डाल के ऊपर से कवर कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। वो जी वो जी। वो जो जीवित कीड़े वीड़े जो आते हैं वो भी चाहिए, हम लोग को चाहिए। वो बहुत काम जी, करता है, वो बहुत काम करता है। एकदम एकदम। बिल्कुल। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो दैट टाइम कभी कभी हाउस फ्लाइज आपको दिखेंगे, या समटाइम्स बड़े मैगट्स या जो लार्वी हमें दिखते हैं, वो बहुत डरावने लगते हैं हमें, और हमें लगता है बाप रे ये तो सब खराब हो गया, हमें अभी उसको फेंकना चाहिए, डर जाते हैं लोग। तो और एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं है। और बाहर की जोन में कभी नॉन वेज फूड है या कुछ अलग किस्म के चीज है, उनको वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। वो वर्मी हाँ कंपोस्टिंग अलग किस्म से होता है। या उसमें जो वर्म्स होते हैं वो हमारे उंगली की तरफ होते हैं, हमारे उंगली की तरफ हम्म उतना बड़ा वर्म्स होते हैं। और वो असीना फोएटिटा करके बोलते हैं उसको, असीना या फोएटिटा। या और वो ब्रीड है सबसे 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 बढ़िया ब्रीड है, उसको भी पालते हैं। और या उसको पालना है, और वो बहुत बढ़िया हो जाता है। हम्म। अ, और मैं, अनुजा मैडम, आई जस्ट वांट टू टेक 5 मिनट्स। कैन आई टेक? एक छोटा स्टोरी बनाना चाहता हूँ। यस। अच्छा, अच्छा, एक वी एक हैव। एक एक कंपोस्टिंग एरिया में हम ये कर रहे थे। और ये जो कीड़े जो हैं असिनाफिडिटा को हम खरीद के लेके आए, आईआईटी दिल्ली से खरीद के लेके आए और शुरू किए थे। और कुछ 2-3 महीने के बाद बहुत बढ़िया चल रहा था। और हमारे पास कम से कम जो 50 वर्म्स होते हैं, केचुआ होते हैं, वो जो है कम से कम हमें 100, 200, 300 तक हो गए। और एक दिन हमने देखा कि शनिचर का दिन था, शनिचर इतवार के बाद हम सब सोमवार, मैं जरा हेड था उसमें, तो राउंड में आए तो देखा तो केचुआ जो है बहुत ही कम हो गया। और हम जो हमारा कम्युनिटी वर्क उसको पूछे क्या हो गया, कैसे कम हो गया? नहीं नहीं, हमें देखना पड़ेगा कैसे कम हो गया। और फिर हमने तो बहुत बहुत ख्याल से रखे थे, और चूहा नहीं आना चाहिए, या कुछ ये कबूतर वबूतर कुछ नहीं आना चाहिए, सब हम बहुत ख्याल से देख रहे थे। तो बाद में फिर देखा तो ये पता लगा कि कुछ जासूसी करने का पता लगा कि हमारे जो ये जो एनजीओ कम्युनिटी के पास एक और कम्युनिटी था, वो फिशरमैन कम्युनिटी था। वो फिशरमैन कम्युनिटी उन्होंने क्या किया, 100 या 200 केचुआ जो है वो ले गए, और चोरी करके ले गए। और वो जो है उनमें जाल में लगा के मच्छी पकड़ने लग गए। तो फिर मैं पता लगा ठीक है, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। हम केचुआ को भी पालेंगे और खाद को भी करेंगे, तो हम तो दोनों करने लगे। और बहुत बढ़िया, एक जगह तो केचुआ पालते रहे। तो केचुआ जो है 500 से 50 हजारों हो गए, और बहुत फायदा हो गया। और एक एक केचुआ जो है हम 5 रुपया, 10 रुपया, वाह। 15 रुपया ऐसे में बेचते थे। और वो लोग किलो में मच्छी पकड़ते थे ओखला के नदी में। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम है। और जो केचुआ केचुआ पाल के केचुआ में जो खाद बना रहा है, ये कर सकते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ, यही मैं बताना चाहता हूँ। Ma'am, I have a question. Can I ask? यस यस। प्लीज। यस। Ma'am, I just wanted to know how do you collect the leachate from that pot? अच्छा, आप एक कंपोस्टिंग यूनिट के लिए ना 2 ब्रिक्स आप जी जी रखिए, और उसके ऊपर कंपोस्टिंग यूनिट को जी रखिए, और जो जी बॉटम होल है उसके नीचे आप एक नीचे एक प्लास्टिक का बर्तन कंटेनर लगा भी के। रख देंगे। ओके, परफेक्ट या परफेक्ट। ओके, थैंक यू। 2-3 क्वेश्चंस इसमें और मुझे भी दिख रहे हैं कि Thank you for giving me my time, Manuja ji. You can, I think both of you can answer the questions. या They are must. बिकॉज जो अर्थवर्म्स होते हैं वो फिश बेट भी बहुत अच्छे होते हैं। और बारिश में तो आपको वो फ्री में जमीन पे मिलते हैं। नाउ दैट यू आर सेइंग 5 रुपए का एक, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छा फंड हो जाएगा, मैं सब जमा करने लग जाऊंगी। सो देयर इज अ क्वेश्चन, कंपोस्ट कल्चर की जगह पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम? या वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट मतलब जो अर्थवर्म्स है वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली हेल्प टू इनिशिएट द Anuja प्रोसेस ऑफ। ma'am, one more point.
One more point. Just a second. Even Let- even the ladies, what they use this good this cotton based pads which they use in the monthly times. That also can be taken up in the composting for vermicomposting. The vermicomposting will do it very nicely, but only thing it should be cotton. Okay. But even if a little bit of plastic is there, it will come out like plastic. You can take out the plastic when it becomes compost. Thank you. We'll Yeah. come to this point and ask you about ask more about this. I'll just request that we listen to the answer that Anushka is sharing, and then we'll come back to any other point that anyone wants to share. Is that okay? Yes, Anushka, you were talking about vermicompost. Yeah. और एक क्वेश्चन था that when we turn it process goes faster. डेली मतलब कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से कंपोस्टिंग कर रहे हैं और खुशी से हम लोग उसको डेली टर्न करना शुरू करते हैं. तो डेली टर्निंग से क्या होता है कि वो जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है फॉर डाइजेशन वो मेंटेन नहीं होता. कंपोस्टिंग तो मतलब कंपोस्ट तो बन जाएगा बट प्रोसेस डिले हो जाता है. दैट्स व्हाई समर्स में आपको 4 दिन में एक बार करना है और विंटर में आपको सिर्फ एक बार हफ्ते में उसको टर्न करना है अपसाइड डाउन. या So there's a question, does compost culture have to be added? नॉट नेसेसरी. मैंने तो कभी नहीं डाला है. Now there's another question, layering will get disturbed when we turn it. यस ऑफ कोर्स. तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि समर्स में कितने दिन के बाद करना है और विंटर्स में कितने दिन के बाद करना है. लेयरिंग डिस्टर्ब होता ही है सो दैट एयर गेट्स इन एंड वो पूरा होमोजीनियस मिक्सचर होता है. जब आप 7 दिन के बाद वापस उसमें आप नया लेयर डालते हो तो यू कैन मेक अ सैंडविच लेयर. मतलब आप वो जो ऑलरेडी डाइजेशन में प्रोसेस में शुरू हुआ जो मटेरियल है वो उसके बीच में आप जैसे उसके ऊपर डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ बटर मिल्क. फिर आपको बटर मिल्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. उसी को डाल दीजिए आप and make the layers. There's another question, can it be kept in sunlight? Yes, मेरे घर में तो है बट इफ इट इज डायरेक्ट एकदम सनलाइट में है तो आपको जस्ट मेक श्योर कि उसको आप एक नॉर्मल किसी शेड में रखे सकते हैं तो भी पॉसिबल है. अदरवाइज आप उसका सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन कीजिए. थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें डाल दीजिए एक्सेस. मल्चिंग कर सकते हैं उसको अच्छे से. और अगर किसी के पास सनलाइट नहीं है तो उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो वो वैसे ही दैट्स आल्सो बेटर. दैट्स बेटर. सो आपने अभी एक टर्म बोला मल्चिंग. I'll come back to that because उसके बारे में भी बहुत सारे सबके अलग अलग थॉट्स हैं. There's another question, how many days will it take to compost? हाँ बिल्कुल भी आपके पास पहले कुछ भी नहीं है. यू आर स्टार्टिंग विथ ईदर सॉइल और बटर मिल्क अगर यूज करके तो 1 महीना तो लगेगा. लेकिन आप जब अभी 1 महीने के बाद आपका जो रॉ कंपोस्ट तैयार होता है और उसको यूज करके एज अ कल्चर आप डाल सकते हो तो 20 दिन में आपका रॉ कंपोस्ट नेक्स्ट साइकिल में रेडी हो जाता है. Very nice. Ma'am, another question, please, Anuja. I'm really sorry interrupting you. No problem, ma'am. Just, I was asking if the buttermilk should be sour or fresh? सार होगा तो और अच्छा है. फ्रेश नहीं चाहिए. Thank you. Yeah, so Monica said depends on ATM. So at this point of time, I would like to ask everyone, आप सब लोगों को ATM का मतलब समझ में आ गया? This is like a pop quiz. Quickly बताइए कि ATM क्या है? You can unmute yourselves and without looking into your notes, just say what is ATM. Air, temperature, moisture. Very nice. Good job. Yeah. Yeah, because what happens is when we do all these workshops and we learn and we take notes, oftentimes we never open that notebook. Yeah. So it's better that we do hands-on experiential learning and all the concepts are imprinted so we don't have to depend on the notebook. Yes. But unless and until we inculcate it and just remember it, you know, do you all know what is the full form of the ATM, which is the bank ATM? Anytime money. Anytime money. I thought everyone will remember air temperature wala ATM. Yes. Automatic telling machine. Automatic telling machine.
या Yeah. व्हेन यू सेट द कंपोस्टिंग यूनिट, अभी आइडियली जैसे मैंने कहा कि 4 दिन में या ट्वाइस, मतलब ट्वाइस और वंस इन अ वीक, ये आइडियल है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होगा कि आपको अपने सेट करने के बाद कभी कभी एक बदबू आना शुरू हो जाता है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमसे काफी इंटेलिजेंट होते हैं और वो हमें बताते रहते हैं कि हम गलत जा रहे हैं। तो बदबू आने का मतलब ये है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, मतलब कंपोस्टिंग यूनिट में ऑक्सीजन कम है या पानी ज्यादा हो गया है। तो आपको क्या करना है, जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। अभी अपसाइड डाउन टर्निंग करने के बाद भी अगर मतलब बदबू आ रही है, इसका मतलब है ऑक्सीजन तो परफेक्ट है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। तो उसके लिए आपको उसमें इधर ड्राई लीव्स आपको डालनी है, या बहुत ज्यादा हो गया, सपोज यू आर यूजिंग अ काउ डंग, तो कभी कभी काफी ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है। सो एट दैट पॉइंट यू कैन एक्चुअली यूज ब्राउन पेपर या कोकोपीट, आप उसको डाल सकते हो, सो दैट एक्सेस मॉइस्चर उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। एंड चींटियां अगर आपको दिखने लगी उसमें बहुत ज्यादा, तो आप हल्दी का पानी कंपोस्टिंग यूनिट के बाहर स्प्रे, मतलब थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग यूनिट में नहीं। एंड चींटियां आती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बट चींटियां आने का मतलब ये भी है कि आपका कंपोस्टिंग यूनिट थोड़ा सा ड्राई है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट की जरूरत है। दीज आर वेरी सिंपल टिप्स विच यू कैन थिंक अबाउट के ये हो सकता है, और यही करके आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो। और उसके लिए रोज के सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए, नॉट मोर देन दैट। But और Anushka, we are all so one more busy point, that 5 minutes in our life, daily life, we are so busy. वन मोर पॉइंट, जो जब जब चींटियां अंदर है, तो चींटियां अंदर है तो पोशाक अंदर है। जब जब कंपोस्ट पूरा पूरा हो जाएगा, चींटियां सब निकल जाएंगी, आराम निकल से निकल जाएंगी, जाएंगी। करेक्ट वो अपना करेक्ट गुफा में चले जाएंगे, अपने को जो हाइडिंग जगह में जगह वो छुपा के रखते हैं अपने खाने को, उस जगह में ले जाएंगे, चले जाएंगे। नहीं, Yeah. मतलब कभी कभी कंपोस्टिंग यूनिट में काफी सारी चींटियां जाते दिखता है तो वो चाय थोड़ा का सा पत्ती, अच्छा नहीं तो नहीं कुछ और लगता है। पत्ती है जो सो उसमें या शुगर होगा। दैट्स व्हाट आई सेड कि चाय की पत्ती हमेशा धो के डालनी है आपको। हाँ, फिर Good. इसके बाद का अनुजा है दैट इफ द कंपोस्टिंग क्वेश्चंस आर ओवर वी कैन मूव ऑन टू द Now, अदर। I have one more question. या Can you please clarify what layers we need to add each time we turn? अच्छा, आपने टर्न किया 4 दिन के बाद, एक तो आप आइडियल या एक एक यूनिट आप मतलब मंडे का एक यूनिट बना सकते हैं, ट्यूसडे का एक यूनिट। तो मंडे आपने कंपोस्टिंग यूनिट सेट किया तो आप थर्सडे या फ्राइडे को उसको टर्न कीजिए, एंड नेक्स्ट मंडे को आप उसको, उसमें आप न्यू लेयर्स लगाने वाले हो, तो द सेम वे यू हैव टू पुट इट ऑल द न्यू लेयर्स इन दैट अबव। Is that clear, Sonia? Or और ये सबसे सबसे बढ़िया चीज है, आपको जब तजुर्बा तजुर्बा जो है Yes, एक दिन very का, clear. Thank you. एक दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आएगी, तो सबसे बढ़िया है। तो जितना तजुर्बा है उतना बेहतर बेहतर खाद बनेगी। yeah, जी and आप सीखते रहेंगे। yes, and अनुष्का, मैं बहुत ही कंपोस्टिंग और गार्डनिंग को एक माइंडफुलनेस थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज मानती हूँ, बिकॉज हम इतने फास्ट फॉरवर्ड जो लाइफ हमारा डेली चले जाता है ना, कि सुबह उठे और अचानक रात हो गई। So when we are doing all these slow processing wala thing, we are forced to observe what we always miss. कि अरे ये बड़ा कीड़ा आ गया, छोटा कीड़ा आ गया, चींटियां आ गई, अदरवाइज हम कभी नहीं देख पाएंगे। सो एक तरीके से वो हमको थोड़ा सा रुका के एक एक वो look at it from that point of view, because many people have outrightly told me कि अरे यार, दिस इज लाइक रियली रियली बिग हेडेक, ये करो वो जी करो, जी ये जी हमारे बस का नहीं है, वी कैन नॉट। they just dismiss they just dismiss it. They're so हाँ afraid कि मैं नहीं कर सकता, I cannot do this, I don't have the time. यस, नहीं एक्चुअली, How do we हाँ explain to people कि यस you don't need time, you just need that यस, attachment or that feeling कि I want to आपको do इसको this. ऐसे देखना है कि आप जैसे आप कुछ अच्छी डिश बनाते हो तो आप उसमें कैसे प्रिपेयर करते हो, वैसे ही आपको कंपोस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स लाइक इट्स अ बेस्ट रेसिपी। तो आप उसमें देखोगे कैसे कि पक कैसे रहा है, डिश बन कैसे रही है परफेक्टली। तो अगर आपको एक ग्रेइश लेयर
वो है एक्टिनोमाइसिटीज का। तो वो अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब है आपका फर्स्ट फेज शुरू हो गया है कंपोस्टिंग का। कभी कभी ग्रेइश पार्ट आ जाता है, बट वो मिक्सिंग के बाद वो पूरे कंपोस्ट कल्चर मतलब कंपोस्ट यूनिट में मिक्स हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग होल ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन दैट। सेकेंड, इसमें आपको कभी कभी सोल्जर फ्लाइज दिखेंगे, या फिर आपको छोटे छोटे वो मैं जैसे कहा कि मैगट्स जो है वो कभी कभी आपको सेकंड इसमें दिख जाएंगे। इसका मतलब है आपका सेकंड फेज शुरू हुआ है। सोल्जर फ्लाइज आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आते हैं अपने आप चले भी जाते हैं, उड़ जाते हैं अगर, बट इफ यू प्रॉपरली मेंटेन मॉइस्चर कभी कुछ नहीं होता। इतने सालों से मैं होम कंपोस्टिंग कर रही हूँ, कभी कभी मैं जैसे मैंने कहा लिविंग रूम में मैं रखती हूँ, बट कुछ भी नहीं आता है। एंड द थर्ड स्टेज, जैसे सेंटिपेड्स जो दिखते हैं तो वो थर्ड स्टेज में दिखते हैं, इसका मतलब है ऑलमोस्ट योर कंपोस्ट इज रेडी। तो ये साइंस है आपको, वो कीड़ों को भी प्यार से देखिए तो पता चलेगा। एंड मैगट्स अगर मिल गए आपके कंपोस्ट में तो भी डरने की बात नहीं, उसको रिमूव कीजिए, एक प्लेट में रखिए, बर्ड्स आके उसको उनके लिए तो वो फीस्ट होती है, वो खुशी से लेके जाते हैं। एंड मैगट्स आर वेरी गुड, वो आपके कंपोस्ट को जब तक आप वो आपके गार्डन के प्लांट्स में नहीं चले जाते हैं, दे आर नॉट एट ऑल हार्मफुल, वो कंपोस्ट को फास्ट बनाने में मदद करते हैं आपकी। या यस, सो इफ अगर सबके क्वेश्चंस जो कंपोस्टिंग से रिलेटेड थे, इफ वी आर डन विद दोस क्वेश्चंस, then we can go to bioenzymes. I have a question. Yes. I'm using plastic bins for composting. Huh? And the top bin, I've received a lid and I was told to close it. So I've been closing. So now I'll keep them open. But the one that isn't done, that's at the bottom, is it preferable, the one that's full but not yet composted, is it preferable to leave it open or to leave it closed? Yeah, if you want to keep it closed, you can make small holes on the cover, in that cover, and just close it. It has small holes all Then over. it's fine. Then it's fine. But Okay. if it is अगर स्मेल आ गया मैम आपके इसमें, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर आप उसको ओपन रख सकते हो। Monsoon में थोड़ा सा स्मेल आ रहा आता था है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि हाँ, तो उसमें आप I थोड़ा had सा a उसको hard ओपन time. रख सकते हैं, तो आप ठीक उसको है. ओपन रख सकते हैं। All right. मिट्टी के गमले से मॉइस्चर अपने आप मेंटेन होता है, प्लास्टिक में वो होता नहीं है। हाँ, इसकी इसलिए वजह से मुझे ये लगा आप प्रॉब्लम जो बात कर रहे हैं मिट्टी स्पेसिफिक या होगा ना. या Okay. Thank you. ओके या Should we move on to the? यस Yes, let's. तो हमारा नेक्स्ट है कि अगर आपको कंपोस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप ये बना सकते हैं। दिस इज, आप इसमें देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये ऑल फ्लोरल पेटल्स है, फ्लावर पेटल्स, और इससे मैं बना रही हूँ बायो एंजाइम। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, और इसको हम कैसे बनाते हैं ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अभी। जस्ट लेट मी शेयर द स्लाइड। Yes, yes. So I want to just inform all of you that we had the session for 1 hour, लेकिन मैंने उसको extend कर दिया है because we were doing the composting thing for such a long time. So don't worry, this is not going to get abruptly, like this is not going to end abruptly. सो अभी फ्लोरल वेस्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ फ्लावर्स है, मतलब जो हमारे होली फ्लावर्स है उससे आप क्या क्या बना सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बायोएंजाइम। So bioenzymes are basically the organic solutions which are obtained by the fermentation process of this fruit vegetable peels with using jaggery and water. अभी इसमें भी आपको घर से मतलब बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में फ्लावर्स तो है ही, गुड़ तो सभी के घर में होता है, और पानी, बस ये 3 चीजों से आप बना सकते हैं। परफेक्टली नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशंस है। इसको ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रूट एंजाइम, गार्बेज एंजाइम, एंड दे आर नॉन टॉक्सिक। मैं भी ये बना रही हूँ, उसके यूज कर रही हूँ, उसके एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। सो इसमें एक बहुत आसान तरीका है, बट ओनली थिंग इज दैट जैसे हम लोग कचरे को अलग करते हैं, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, वैसे ही आप इसमें फ्लावर्स को अलग कर दीजिए और अलग अलग फ्लावर्स के आप बना सकते हैं। फ्रूट्स पिल ऑफ के साथ भी बायोएंजाइम्स बनते हैं। तुलसी का बायोएंजाइम बन सकता है, नीम का बायोएंजाइम बन सकता है, लेमन ग्रास का बायोएंजाइम बन सकता है।
तो ये चीजों के साथ भी आप बहुत अच्छे बायोएंजाइम्स बना सकते हैं। एंड थ्रू दिस प्रेजेंटेशन यू विल कम टू नो कि आप जिस चीज से बायोएंजाइम बना रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन और ये एप्लीकेशन डिफरेंट है। सो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक तो फ्लोरल वेस्ट या फ्रूट वेस्ट, या फिर आप ये जैसे मैंने कहा कि आपका नीम है, हल्दी है, लेमन ग्रास है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी अभी वहां पर कंपोस्टिंग में ATM था, यहाँ का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1:3:10। मतलब अगर एक पार्ट आपने जैगरी लिया तो 3 पार्ट आपको इधर पेटल्स लेने हैं या फिर फ्रूट के मतलब फलों के छिलके हैं, और 10 पार्ट्स आपको पानी लेना है। अगर आप प्रॉपरली ग्राम्स में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी, 300 ग्राम्स ऑफ इधर पेटल्स और फ्रूट पील ऑफ्स एंड 1 लीटर ऑफ वाटर। इस तरीके से आपको याद रखना है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। ये ग्राम्स वगैरह हमें सुबह हम लोग इतना किचन में काम करते हैं घर में, फेस्टिवल टाइम में इतना ग्राम्स वगैरह में लेने की हमें टाइम भी नहीं मिलता है। सो इट्स बेटर एक कटोरी लीजिए या एक ग्लास लीजिए, उस हिसाब से आप उसको 1:3:10 में यूज करके इसको बना सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स आपके घर में हैं, उसी में आप यूज कर सकते हैं। कंबाइन ऑल दिस कंपोनेंट्स इन अ प्लास्टिक बॉटल और मेक श्योर कि आप उसको ऊपर, आपको अगर दिख रहा है मेरे इसमें, तो आपको उसके ऊपर की इतनी जगह आपको खाली रखनी है। अभी किस लिए वो मैं बताती हूँ। ये सिर्फ मिक्स करके आपको रखना है, बाकी आपका काम हो गया, बाकी सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो रोज सिर्फ उसका ढक्कन हल्के से उसको रिलीज करना है, गैसेस जो तैयार होते हैं, बिकॉज इट्स अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो उसमें गैसेस रिलीज होते हैं। वो गैसेस को आपको बस रिलीज करना है, और उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको 3 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन आपने अगर यीस्ट यूज किया तो उससे कम टाइम लगता है। इट प्रोड्यूस मतलब 1 महीने में भी रेडी हो जाएगा। बट आई एम नॉट यूजिंग यीस्ट, बट जो पहला तैयार हुआ आपका जो बायो एंजाइम है वो नेक्स्ट स्लॉट में आप डालेंगे तो आपका बायो एंजाइम 1.5 मंथ में, मतलब 45 डेज में रेडी हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे जस्सी 1 पार्ट ऑफ जैगरी, 3 पार्ट्स ऑफ इधर आप सिट्रस पिल ऑफ भी ले सकते हैं, संतरे के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, या फिर आप इवन बनाना के छिलके भी ले सकते हैं। मैंने तो आम से भी बनाया है, आई एम शोइंग इट टू यू। तो ये तरीका है जो आप कुछ भी आपके घर में जो फ्रूट्स फ्लावर्स है उसको यूज करके आप कर सकते हैं इसको। So Anushka, I have a question. या जो हम फ्लावर से आप कह रहे हो, अब आप फ्लावर पे आए हो, सो माय क्वेश्चन, बट मैंने हम हमेशा बोलते हैं ना मिट्टी का गमला लो, हाँ, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं प्लास्टिक की बॉटल लो। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस बता दीजिएगा, लाइक हिस्ट्री दैट हैपेंस। या प्लास्टिक या आप ग्लास बॉटल भी यूज कर सकते हो, प्लास्टिक भी यूज कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि गैसेस तैयार होते हैं और इट हैज टू बी कंप्लीटली अनएरोबिक, मतलब एयर अंदर जाना अगर इसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट्स अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, अनएरोबिक प्रोसेस। तो ये गैस जो है वो फिट बैठ जाती है इसमें। और दूसरी बात यह है कि अगर ज्यादा गैस तैयार हो गया, कभी कभार आप भूल गई उसको निकालना, तो कभी कभी वो गैस रिलीज होते वक्त ये ग्लास की ये है तो टूट सकती है। सो इट्स बेटर टू कीप अ प्लास्टिक थिंग इन दिस। इसमें हमारे प्लास्टिक के बॉटल्स भी यूज हो जाते हैं, वो कचरे में नहीं जाते हैं, और इससे आप सिट्रस फ्रूट से ये कर सकते हैं। मैंने इस MIT यूनिवर्सिटी में हमने नवरात्रि फेस्टिवल में पूरे MIT यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से फ्लोरल वेस्ट कलेक्ट किया था, एंड उससे वी हैव मेड 100 लीटर्स ऑफ बायो एंजाइम। हमने इतने बड़े कि हमें फेविकॉल के ये बैरल्स हमने यूज किए, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स में रखने के लिए जगह नहीं थी, काफी ज्यादा फ्लोरल वेस्ट था। तो सारे पेटल्स हमने उसके यूज करके हमने 100 लीटर्स ऑफ बायो एंजाइम हमने वहां पर बनाया है। One point I want to add. तो आप MIT Institute is one of the most disciplined marine training institute in Pune.
and it's very good that Anushka ma'am has gone and counseled them, and also they have participated. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you sir, thank you. ये घर में ही मेरे बने हुए फ्लोरल के, मतलब ये मैंने गेंदे के फूल और क्रिजांथेमम, मैरीगोल्ड एंड क्रिजांथेमम, चमेली और गेंदे के फूल से बनाए हुए ये हमारे बायो एंजाइम्स हैं। अभी इसके यूजेस कितने हैं देखिए, आप जो जो अलग अलग बायो एंजाइम्स आप मतलब मटेरियल यूज करेंगे, जो फ्लावर्स आप यूज करेंगे उसके हिसाब से उसका ये चेंज होगा। या आपने फ्लावर्स नहीं यूज किया, आपने सिट्रस फ्रूट्स यूज किया, नींबू हम लोग घर में हमेशा यूज करते हैं, तो उसको फेंकिए मत, उसको और संतरे के छिलके को एक साथ डालिए जैगरी के साथ, आपका बाथरूम क्लीनर तैयार हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, जो केमिकल जो अपने हम लोग यूज करते हैं बाथरूम्स के लिए, उससे भी अच्छा क्लीनिंग इससे होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, वाटर पोल्यूशन नहीं होता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अगर आपने संतरा या मतलब नींबू से यूज किया है, बनाया है बायो एंजाइम, तो आप उससे डिश वॉशिंग कर सकते हैं नॉर्मल। मेरे घर में अभी कोई भी हम लोग मैं मतलब ये नहीं लाती हूँ डिश क्लीनिंग के लिए सोप या जो भी है, मैं बायो एंजाइम से ही करती हूँ, तो वो क्लीन अप हो जाता है, बाथरूम क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। प्लांट ग्रोथ बूस्टर अगर आपने बनाना के इससे किया, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इतना बेनिफिशियल है कि बहुत अच्छे फ्लावरिंग रिजल्ट्स आते हैं। सरफेस क्लीनर, आप कौन सा भी बायो एंजाइम एक्चुअली एज अ सरफेस क्लीनर यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली इफ यू आर यूजिंग मैरीगोल्ड एंड क्रिसैंथेमम, गेंदे के और चमेली के फूल का बहुत अच्छा सरफेस क्लीनर एज अ यूज होता है। इट इज अ बेस्ट मस्कीटो रिपेलेंट। मैंने ये खुद मतलब एक्सपीरियंस भी किया है। जब आप उससे मॉपिंग करते हो, इंसेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, मस्किटोज कम हो जाते हैं, कॉकरोचेस, स्पेशली कॉकरोचेस, एंड्स हमारे किचन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है हमें, तो आप अगर बायो एंजाइम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। देन इंसेक्ट रिपेलेंट है, बाथरूम क्लीनिंग है, ड्रेन क्लॉगिंग, कभी कभी हमारे इसमें होता है क्लॉगिंग, तो उसके लिए भी यूज होता है। लाइम स्केल रिमूवल, जो हमारे नल के ऊपर वगैरह काफी स्केलिंग होता है, और उसका भी आपने अगर उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड या अगर रोज का अगर आपने बायो एंजाइम बनाया, तो आप उसको रूम फ्रेशनर करके भी यूज कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के एंड हैंड वॉश के लिए भी कर सकते हैं। सिट्रस का, एज आई सेड, लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स हैं, उसके आप उसका डिश वॉशिंग कर सकते हैं, नेचुरल क्लिंजर्स है, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए उसका यूज होता है। नीम का जब अगर आपने बायो एंजाइम बनाया, तो दैट इज अ गुड पेस्टिसाइड फॉर प्लांट्स, आपके गार्डन में आप उसको स्प्रे कर सकते हो। इट इज अ बेस्ट मस्कीटो रिपेलेंट। इट कैन बी यूज्ड फॉर बॉडी वॉश। अलोए वेरा का भी बना सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन एज अ शैम्पू, पेस्टिसाइड एंड इवन अ फेस वॉश। हिबिस्कस, हमारे जो जासवंत हम लोग कहते हैं उसको, फ्लावर्स, दैट इज अ बेस्ट कंडीशनर एंड इवन कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ शैम्पू। टैमरिंड का बनाया तो कॉपर वेसल्स के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेमन ग्रास का मैं अभी भी बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज अ बेस्ट मस्कीटो रिपेलेंट एज वेल एज फ्लोर क्लीनर। सोप नट्स का तो वी नो दैट आवर ट्रेडिशन, हम बनाते हैं, यूज होता है नेचुरल शैम्पू, बट क्लीनिंग के लिए भी उसका यूज होता है। तुलसी के अगर पत्तों का आपने बनाया, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग। गार्लिक का भी बना सकते हैं, विच इज अ बेस्ट पेस्टिसाइड। मैं बता रही हूँ आपको कि कितने चीजों से आप बायो एंजाइम बना सकते हैं, और हर एक का आप यूज देखिए, मतलब आपके घर में जो केमिकल क्लीनर्स जो आ रहे हैं वो पूरा बंद हो जाएंगे इससे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि क्या क्या किस तरीके से मैंने बायो एंजाइम बनाए हैं। ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहे होंगे पेटल्स है, मैरीगोल्ड और क्रिसांथेमम, चमेली और गेंदे के। एंड ये अभी ऊपर दिख रही है आपको लेयर, एंड पूरा पानी और गुड़ नीचे दिख रहा है, बिकॉज ये अभी शुरुआत हुई है इसकी बनने की। अभी रोज आपको क्या करना है, 1:3:10 में डालने के लिए मैंने ऊपर कितनी जगह रखी है देखिए बॉटल में, तो आपको पता लगेगा कि बॉटल में जगह क्यों रखी है। अभी देखिए, मैं रोज आपको ये एयर टाइट आपने बंद किया उसको ठीक से, अभी देखिए कैसे ऊपर आ रहा है,
ये धीरे धीरे गैस निकलेगा और ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, देखिए आ गया ऊपर। इस तरीके से ये ऊपर आता है जब आप उसको, उसमें से गैस रिलीज होता है। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। या सो रोज इस तरीके से, मैंने पूरा ढक्कन खोला भी नहीं है, आई एम जस्ट कीपिंग इट, पैकिंग इट बैक। इस तरीके से रोज आपको सिर्फ इसमें से गैस निकालनी है, एंड दैट टेक्स अराउंड 15 to 20 डेज। उसके बाद गैस रिलीज होना बंद हो जाता है। अभी देखिए ये मैंने बनाया, दैट इज अ गुड फ्लोर क्लीनर। मॉपिंग के लिए मैं इसका यूज करती हूँ, मस्किटो रिपेलेंट एज अ यूज कर रही हूँ इसका। अभी ये प्रोसेस में है। नाउ इफ यू कैन सी दिस, इसमें ये पूरे सेटल हो गए हैं नीचे, पेटल्स पूरे सेटल हो गए हैं एंड पानी ऊपर दिख रहा है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली रेडी। ये साइन है आपका। आफ्टर मीन्स अभी मैं कल्चर यूज कर रही हूँ, इन द सेंस ये जो पहला रेडी हुआ जो बायो एंजाइम है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 1.5 month में मेरा ये रेडी हो गया है। अभी इसमें आप क्या देख रहे हैं, नींबू और संतरे के छिलके हैं। इसमें भी आप देखोगे तो मैंने ऊपर जगह छोड़ी है, बिकॉज एवरी डे वो गैस जब ऊपर आता है तो उसके साथ अदरवाइज पूरा हमारा लिक्विड जो है ये बायो एंजाइम वो बाहर आ सकता है, इसीलिए ऊपर आपको गैप छोड़ना जरूरी है। तो ये अभी रेडी हो जाएगा। इट इज अ बेस्ट मतलब बाथरूम क्लीनर, प्लस इससे आप डिश वॉशिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाता है। ये है मैंगो से बना हुआ अप्रैल मई में बहुत सारे मैंगोज घर में आए थे, तो मैंने सोचा नहीं ये, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये आमरस। बहुत कम दिख रहा है, बिकॉज क्या हुआ कि मेरा 1-2 दिन मैंने गैस निकालना मैं रह गया, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। और जब मैंने ये खोला तो वो फट करके सारा निकल आ गया और पूरा बाहर गिर गया। तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको 1 लीटर में या इसमें आपको सिर्फ 5 ml इसको डालना है, इतना इसका इफेक्ट अच्छा रहता है। और इस हिसाब से आप घर में बना रहे हो। मैंने नाउ दिस इज मेड अप ऑफ लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास का बन रहा है मेरे घर में ही, तो ये मैंने यूज, अभी ये भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आप छोटे छोटे देखिए, मेरे घर में जो बॉटल्स है इसमें डिफरेंट, इसमें मैंने इसका यूज करके बनाया है। दिस इज ऑफ हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक जो अपना गीले मतलब जो होता है उसका हीरा, रॉ टर्मरिक, तो उसको यूज करके मैंने ये बना रही हूँ। इट इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक, क्योंकि घर में किचन में काम करते वक्त तो हाथ जलना इज वेरी कॉमन फॉर अस। और ये मैं बता रही हूँ आपको कि इसके साथ आप नीम, ये हल्दी और रोज ये मिक्स करके भी आप एक बेस्ट एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हो। मैं, अगर आपका हाथ जल गया उसके ऊपर आप यूज करोगे, आप यहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया था, उसको स्प्रे कीजिए। जलना जो है, जो ये होता है जलने के बाद जो सेंसेशन होता है वो पूरा बंद हो जाता है, दाग भी नहीं रहता है, एंड इट क्योर्स वेरी फास्ट। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं एक भी फ्लावर यूज वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे पास एक रोज फ्लावर था तो मैंने उसका भी छोटे से इसमें बना दिया है कि ये इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं। रोज का तो मतलब यू कैन यूज इट एज इट इज एज अ रूम फ्रेशनर, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, सुगंध जो है, एक्चुअली सुगंध आती है उसकी। So this is way you can use your festival or daily also the holy flower waste easily into this best solutions. Thank you so much. Thank you so much, Anushka. And मतलब one small point. See, whenever you जब भी आप नींबू मैंने नींबू अलग अलग एक बॉटल में डालिए, तो संतरा डालिए तो चलेगा, सिट्रस कंबाइन कर सकते हैं, बट सिट्रस अलग। जो भी चीजें ज्यादा मिक्स मत कीजिए। आम होगा तो आम का आनंद आप खुद आम का आनंद लीजिए। ये बाकी फल और सब मिक्स मत कीजिए। एक चीज को एक फ्लेवर मिलेगा, और आप खुद अपने आप करते करते तजुर्बा बढ़ते जाएगा। आप फिर आपको 1 साल के बाद आप खुद एक आचार्य बन जाएंगे इसके। आचार्य, thank you so much.
थैंक यू Yeah, few questions, Anushka. मैम आपने अभी बताया कि इसमें अपन जैसे इसको शैम्पू के तरह या डिश वॉशिंग लिक्विड की तरह यूज कर सकते हैं. सो वंस इट इज रेडी डायरेक्टली यूज किया जाता है कि उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है? फिल्टर इट विद क्लॉथ नहीं, फिल्ट्रेशन. हाँ, मतलब वो क्लियर जो बनता है वो लिक्विड आप डायरेक्टली उसको डाइल्यूट कीजिए बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो उसको dry liquid. डाइल्यूट कीजिए एंड फिर यूज कीजिए. So dilute करने का, Anushka, would you like to share exactly कि dilute नॉर्मली 5 ml फॉर 1 लीटर. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. या एक ढक्कन that is 5 ml, जो भी बॉटल का ढक्कन है वही अप्रोक्स 5 ml हो जाता है. सो आप आपके बाल्टी में जितने भी 2-3 लीटर या जितना भी आपने लिया है पानी, तो एक ढक्कन डाल देंगे. आई थिंक 1 लीटर. that is more than enough. Yeah. इतना मेजरमेंट लेके हम लोग करते नहीं हैं, बट वो हो जाता है उतना ही. ब्यूटी पार्लर में यही इस्तेमाल करते हैं. कुछ क्लीनिंग वीनिंग करके वो ट्यूब में लगा के वो बेचते हैं. फॉरेन मेक, वो इंडियन मेक, बट यही चीज आता है. एलोवेरा पेस्ट, एवरीथिंग, कुकुम्बर, लेप, एवरीथिंग. थैंक यू. Nice. So why I was asking you, Anushka, about the measurement, क्योंकि जब कोई नया बनाता है, a newcomer is always very, मतलब वो एकदम परफेक्टली चालू करना चाहते हैं. देन जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो फिर हमको मेजरमेंट और वो सब नहीं चाहिए होता है, हमको वो सब पता होता है अंदाजे से. बट फॉर न्यू कमर्स हमको वो एग्जैक्ट बताना है कि आप ये लो वो लो ऐसे करके. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. एंड जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कभी कभी आपको शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है फॉर मॉपिंग, बिकॉज आपका जो नॉर्मल केमिकल जो आप यूज करते हो उस उतना इफेक्ट इसका पहले आपको शायद ना दिखे, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली उससे ज्यादा होता है. लेकिन वो समझ में आने के लिए, या फिर कभी उसमें कैसे होता है कि उसका जो स्मेल अच्छा आता है ना, जब हम लोग केमिकल्स डालते हैं तो उसका स्मेल अच्छा आता है. इसके लिए अगर आपने डाला तो आपको लगेगा अरे स्मेल ही नहीं आ रहा है कुछ पहुंचने के लिए, तो कभी कभी आप एक्स्ट्रा डाल भी सकते हो. बट डायरेक्ट एकदम वो स्ट्रॉन्ग जो है वो आप फर्श पे, स्पेशली मार्बल्स पे या इस पे नहीं डालिए. हाँ, उसको डाइल्यूट करके ही डालिए. एंड स्पेशली फॉर प्लांट एप्लीकेशन ऑल्सो यू हैव टू डाइल्यूट इट. There's a question. Sneha ने पूछा है. Sneha, do you want to unmute and ask that question? Yeah. Hello, Anushka ma'am. A brilliant session on composting as well as bioenzyme. Very intriguing about the usage of bioenzyme जो आपने बताया. Ma'am, so I generate like small quantities of flower waste every day. So I was just asking कि can I, for example, store the waste and then make bioenzyme, मतलब freshly ही flowers डालने चाहिए उसमें. And second question was कि अगर नहीं तो can I put it in batches कि every day I'm putting थोड़ा सा उसमें, just the way we do composting. So how can I solve this? जैसे कि एक तो बायो एंजाइम के लिए ऐसे जैसे हम लोग अगर फ्लावर्स को 4-5 दिन रखेंगे तो वो थोड़ा ब्लैकिश दिखने लगते हैं, तो वो नहीं यूज कर सकते हैं. हम इसको फ्रेश फ्लावर्स ही चाहिए. एंड जैसे आपने कहा कि 1-2 दिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो उसमें आप वो क्वांटिटी याद रख के उसमें डाल के रख देंगे तो चल जाता है. ऐसे कोई तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर छोटा सा कुछ बनाया है तो उसमें कैन आई पुट मोर वाटर, जैगरी एंड पेटल्स इन सम टाइम? या फिर आप उसके हिसाब से आपको एक थोड़ा सा अंदाजा होगा कि आपके रोज के इसमें कितना जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से आप पहले से जैगरी और पानी डाल के रखिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड. बट नॉट एवरी डे. हाँ, मतलब 1-2-3 दिन के लिए ठीक है, अदरवाइज वो प्रोसेस में. एंड मेक श्योर दैट कि आपकी बॉटल 60% फिल अप है, उसके बाद नहीं डाल सकते क्योंकि 40% आपको ऊपर रखना ही. ठीक है. And ma'am, मेरा second question था, I have a dog in my house, so is it safe to use with the dogs? क्या use कर सकते हैं क्या नहीं? It's absolutely, मतलब केमिकल्स के साथ डॉग्स रह रहे हैं हमारे साथ, ये तो ऑर्गेनिक, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मतलब मैम the reason I was asking was कि I was reading it somewhere कि whatever eucalyptus is not good for dogs and all, just some plants and fruits might not be, citrus is not good for dogs, so if I can use that as a cleaner or not. No, but citrus के लिए आपको, मतलब normally it is used in bathrooms for cleaning, मतलब citrus के लिए और dish washing के लिए है. It's not for mopping के लिए. mostly ये आप इसका यूज कर सकते हैं because citrus का काफी strong हो जाता है, तो bathrooms and इसके लिए आप उसको यूज कीजिए. I will tell about the dog. I'll tell a little bit about the dog.
See, dog is also Yes. like our own family, and you must Yeah. be having good training. That means you will be telling him what is good, no, bad, no, bad. So this you have to mention to Yeah. mention to him, and if you keep doing that, no, the fellow will understand, or she will understand very clearly what is good and what is not good, and she will Okay. follow exactly what you are doing. So that is what is required. A little bit of pet etiquette is required, and that discipline has to be maintained. Thank you Yeah. very much. Yes, sir. You'll enjoy. Thank you, You'll ma'am. enjoy. Thank you, sir. Great. So we have a question that Monica's asked. Monica, I can ask the question if you're here. How long can we keep the bioenzyme? Does it need to be sifted? So yes, हमने बता दिया कि उसको छान के एक बॉटल में आपको ट्रांसफर करना है. और how long can you keep it, अनुष्का? आप वो बता सकते हैं. लॉन्ग आप जितना दिन रखे वो और अच्छा बनता जाएगा. सो इट यू कैन कीप इट एज इट इज, एंड पूरा वो मतलब वो तो अभी आप घर में उसको यूज करने लगेंगे तो अभी देखिए ना, मेरे इतने सारे बॉटल्स है, पूरी फैमिली है मेरी. आप यू कैन मेरे हाथ में भी नहीं आ सकते हैं इतने. Jokingly, I will say that it will become a well-matured whiskey. Exactly. Yes. I was going to say कि जैसे when we talk about इतने-year-old wine or whiskey or whatever, treat it like that. It's like people. Very good. Nice. Very frank. Gold. And Frank is and you nice. get a good results accordingly also. Exactly. So then, yeah. So with that, we have all the questions that have been answered. If there are any other questions, I had a question actually, and you already answered it because I was asking on behalf of someone कि उनके पास बहुत सारे उन्होंने dried flowers बचा के रखे थे, and they were saying कि हम dried flowers से bioenzyme बना सकते हैं क्या? And I said कि उसके लिए fresh चाहिए because dried flowers तो are done already है ना. अब उसके साथ आप पेपर में बना लो या फिर उसको वो बना लो kind of पॉटपूरी टाइप का बना लो और बाथरूम में रख लो या बुक्स के बीच में रख लो और फ्लैटन कर लो. बट बायोएंजाइम के लिए यू नीड फ्रेश फ्लावर. नहीं, you need a fresh flowers. The jaggery works like a accelerator for fermentation. That's why we have to add jaggery. ये भी क्वेश्चन होता है कि jaggery क्यों? तो jaggery fermentation स्टार्ट करता है प्रोसेस को, एंड देन वो अपने आप वो ये प्रोसेस स्लो फर्मेंटेशन है. अभी इसके भी एटीएम की तरह ये भी याद रखना है इधर कि जैसे आपका ये लेयर यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज ऑलमोस्ट 20 days हो गया है इसको. अभी आप देखेंगे कि ये एज इट इज पेटल्स इसमें अच्छे रह रहे हैं, जैसे पहले दिन आपने डाले हैं वैसे ही कलर इसका दिखता है. अभी इसके ऊपर अगर आपको ब्लैक कलर दिखने लगा तो फिर समझना है कि एयर अंदर जा रहा है. दिस इज अ सिम्टम. तो आपको दिख जाएगा और ये आपका हिंट है कि ब्लैक कलर ऊपर दिखने लगा, इसका मतलब एयर अंदर जा रहा है. तो एयर मेक श्योर क्या है आपका ये जो कैप है वो प्रॉपरली एकदम पैक रहेगा तो आराम से बन जाएगा. We have another question. Can we use sugarcane juice instead of jaggery? ये तो मैंने यूज करके तो देखा नहीं है, बट आई गेस शुगर केन जूस से जैगरी ही बेटर है बिकॉज दैट इज अगेन अ फर्मेंटेड प्रोसेस से बना हुआ ही ये होता है. सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डायरेक्टली शुगर जैसे हम नहीं डाल सकते वैसे ही शुगर केन जूस नहीं. Yes, I think जैगरी भी थोड़ा concentrated होता है, so वो जैगरी के प्रोसेस या न्यूट्रिएंट्स जो एक्सपेक्टेड है वो जैगरी से आते हैं as an accelerator for anaerobic process. Yeah. And one more point I want to add. Yes, but yeah, you see there are a lot of बहुत सारे self help groups हैं जो रूरल विलेज के रिलेटेड हैं या कुछ मंदिर के साथ रिलेटेड हैं. वो सब बहुत सारे मंदिरों में जाके फल और पुष्प लेके फल से वो ये खाद बना लेते हैं और पुष्प से ये बायो एंजाइम कर लेते हैं और मंदिर में ही करते हैं. ये सब हमारी कोई एनजीओ होगी कोई होंगे तो वो कर सकते हैं. और अनुजा जी आप इसको एनकरेज कर सकते हैं.
यस, हम वो ऑलरेडी कर रहे हैं अजीत जी, बिकॉज हम सब महिलाओं को यही बता रहे हैं कि आपको, क्योंकि वो लोग कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं ना, Business, yeah, self-help तो group, Yes. yes. हम उनको बोलते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपका होगा और आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हो। तो उनको थोड़ा सा, दे आर इन शॉक, बट देन व्हेन वी टीच देम, लाइक अनुष्का केम टू द स्कूल, द कम्युनिटी स्कूल, and then we did a demo and she taught them how to make. All the students were so excited, and then afterwards they were like taking turns to open the dhakkan and wo nikalna. So I will, they I are, will, yeah, please, finish. they have to teach all, like everybody, women, children, men, everyone. We are trying to teach the juice vendors, and they have also shown great interest कि हमारे पास इतने सारे फ्रूट पील्स वेस्ट होते हैं, हमको सिखा दो प्लीज। तो हम अब एक सेशन उनके साथ भी करने वाले हैं। So जी, I'll give you full Hello, encouragement ma'am. for that. yes, Yes. And I one have more one thing. question. Yeah, Hmm. finish your yes, question. Hello. Yes, yes. I think that we can use the used bioenzyme the next process whenever Yeah. once the bioenzyme is ready, and we Hmm. next time we can use the to speed up the process. Can you please Yes. tell us that how much bioenzyme should be used? हाँ. Will it replace the entire amount of water or just a small amount of bioenzyme? Small, very small amount is required. और जैसे और एक मैं कह रही हूँ, अगर I don't know whether it's visible or not through this, इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा है एक व्हाइट कलर का लेयर आ रहा है, ओके, ये जैसे जैसे फर्मेंट होता जाएगा आपको व्हाइट कलर का लेयर दिखेगा, और पूरा जब रेडी होगा तो वो व्हाइट कलर का लेयर ऊपर रहता है। सो जस्ट रिमूव दैट एंड कीप इट इन वन बॉटल एंड यूज इट एज अ कल्चर। तो वैसे ही आपको एक पूरे 1 लीटर की बॉटल में आप जस्ट 5 ml भी डाल देंगे तो दैट इज मोर देन इनफ एज अ कल्चर। Okay, ma'am. Thank you. Okay, so now if anyone has any questions, Just want to expand. we have come to the last 2 minutes of the session. No, I'll take 5 minutes. See, even in offices, there are so many good offices where they are going for जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं, वो जो रेस्ट रूम के बाहर जितने जितने हैंड वॉश डिस्पेंसर्स हैं या हाथ की सफाई करने हैं, वो सब के लिए बायो एंजाइम यूज कर रहे हैं। और वो जो बायो एंजाइम यूज करने के बाद जो हाथ साफ करने की जो पानी, जो गंदा पानी है, उसको भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, सीधा भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, और पेड़ पौधे में कुछ नुकसान नहीं है, वो न्यूट्रिएंट के माफिक पेड़ पौधे को काम करेगा और बहुत बढ़िया ही है। सो इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Yeah, truly, bilkul. This is like circularity. And today I was actually, when I was thinking of circularity and circular economy, Anushka, Yeah. I came up with something that मैंने mind में copyright कर लिया already. I said we always talk about circular economy. Let's talk about circular ecology, because so we are spoiling our environment and then making money, but let's just utilize the resources and then नहीं, make. ये तो कम से कम तो लैंडफिल में जाएगी, वो तो बहुत बढ़िया है ना। Yeah, so it will be great. So I thank you, everyone. In 1 minute our session will close, but Anushka, thank you. It was great, wonderful. People really loved it. Thank you. And all of you, please stay tuned, and हम लोग next week में और एक wonderful session करेंगे about eco bricks, and we are going to have Zui for that, and you are also welcome, Anushka. Yes, of course. So see you all. Take care. Bye bye. Yeah. Okay, have a nice eco-friendly Ganpati Puja. Yes. Yes. इन And एडवांस सभी को गणपति की शुभकामनाएं, सभी को अच्छे से आप करोगे, सब आप घर में कीजिए ताकि और अच्छा सभी को लगे। इन अ वे और सबको शेयर करें। बहुत अच्छा सेशन था, धन्यवाद। It was great to listen to you, ma'am. Anuja ma'am, thank Thank you you. very much. Anushka ma'am, thank you very much. I will directly be being in contact with you, ma'am. Yes, sir. Anytime. Thank you. Thank you so much. Especially to do something with MIT. Yes. They are very, very close to my heart. Okay. because I'm a marine engineer. I've worked in the Similar Institute. I know
quite a lot of madams also there. Acha. Thank you very much. Thank you so much, sir. Yeah. Happy festivals. Yes. Happy It was very insightful session, ma'am. Thank you. Thank you, Amar. अब आप सब लोग इसको बनाइएगा. That is what is the process. आप बनाइएगा, उसके फोटो शेयर करिएगा कि कैसे बना, और क्या मुश्किल आई वो बताइएगा, तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, है ना? Sure, ma'am. Yes. Great. So take care everyone. Good night. Yes. Thank you. Shubharatri sabhi ko. Thank you so much. We will post this video on our YouTube link and आपको बताएंगे. So उस वक्त आप वीडियो भी देख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो. Thank you. Thank you, Ji. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Thank you, Anushka. Bye bye. Thank you, everyone. Thanks. Bye bye.